Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, we would like to start the program now. And first of all, I would like to say my thanks to Dr. Samina Khalil and all the participants specifically to join us today. I would like to say something for Dr. Samina Khalil. It is both an honor and a privilege for me to stand here today as we gather to pay tribute to an extraordinary individual and visionary scholar and a dedicated mentor, Dr. Samina Khalil. Thank you, Dr. Saiba. Dr. Samina Khalil's journey has been nothing short of inspiring. As a distinguished academic, her contribution to the field of economics has not only advanced our understanding but also have paved the way for new perspective and approaches. Beyond her academic achievement, Dr. Samina Khalil has always been a beacon of wisdom, kindness, and humility. She has touched the lives of many through her mentorship, always guiding with patience and encouragement. Her ability to inspire those around her to strive for greatness is a testament to her exceptional character. Her efforts to bridge knowledge with practical solutions have had a profound impact, not just locally but globally, whether through her research, her advocacy, or her dedication to building a better future. She has exemplified what it means to be a true leader. Today, we honor Dr. Samina Khalil. We also re-celebrate the values she represents. She reminds us that one person can indeed make a difference and inspire countless others to do the same. On behalf of everyone here, thank you, Dr. Samina. Thank you so much. It's really very humbling introduction that you have made. I don't think so I have got so much qualities in me which you have described. This is really very humbling experience for me that you have said so many good things about me. But after all, I'm a human being. And like other human beings, I've got my all other negative traits as well, which I try to overcome that too. But this is something which I appreciate it. Thank you so much. I'm really humbled. So, Ma'am, you really means, I mean, you deserve more, but due to the shortage of time, I just make it short. So okay. now I would like to listen to you. Therefore, I said you share your thoughts with us, and therefore, yeah. You see, there's something which is really very important to say. First is that each and every human being, I mean, all of us, we come from different backgrounds. We have different experiences, starting from our childhood, and also different kind of families, different supports, different opportunities. So everybody is kind of we have unique experiences with us and unique childhood. Everything is unique with each and every individual. For me, I would say that I'm kind of a very lucky in a sense that the solid foundation for my life that was provided by my parents. Since my both of my parents they were educated, my father was not only an educated person in a modern sense, since he was a pharmacist and he was a director first and then the executive director of a managing director of a pharmaceutical company, German pharmaceutical company for a very long time. So, but on the other hand, he was a very religious person as well. He was a very literary person as well. So he had so many qualities in him. I was inspired by my father because he was my role model from the very beginning. And my mother was a housewife, and both of them, their mission or their ambition in their life was to give us education. All my siblings, I've got three sisters, two sisters and one brother. So they wanted us to get good education so that we can, so their sole purpose was to make us good human beings as well as give us a good education. So they did everything for us, for me as well as for my siblings, to set the good foundation, and they wanted us to have higher education as well. So I never felt any kind of discrimination
among my brother and my sisters, because he was the only son. My brother was the only son for my parents, but they never discriminated in terms of education. They wanted quality education not only for him but also for us. So this is something which I really appreciate for my parents. Other thing is that um, uh, what else I can do? I mean, this is about the foundation. And then I kept moving ahead in my education and my academic life. And I always wanted to be, I was very good in mathematics. So my sister was good in biological sciences, but I was good in mathematics because I scored very good marks, like 98 in my matriculation exam, in the board, and in the FSC. So they Ma'am, wanted sorry, me to I join cut the you short. engineering Excuse me, college. ma'am. Excuse me, ma'am. Sorry. Sorry, extremely sorry to cut you short. Extremely sorry to cut you short. In fact, many here with us are they want that you tell us your story in Urdu. They are interested to listen you in Urdu. तो kindly उर्दू में discussion कर लेते ताकि बच्चे नहीं जी नहीं, जरूर। तो हाँ, sorry मैंने आपको ये आपने मेरा तो इंट्रोडक्शन चूंकि इंग्लिश में कराया, आई थॉट कि ये जी मैम लैंग्वेज हमारी अंग्रेजी होगी यहाँ पे। लेकिन मैं उर्दू जितनी खुशी से बोलती हूँ, मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग ही इतनी खुशी से उर्दू बोलते हैं। बट जी मैम खैर, थैंक यू मैम और थैंक देखिए ना, हम तो यहाँ यू कंटिन्यू कराची में प्लीज रहते हैं, कराची वाले तो उर्दू बोलना बहुत पसंद करते हैं और पूरे पाकिस्तान में ही बोली जाती है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा बहुत ही मुतासिर कुन ऐसा मेरा इंट्रोडक्शन कराया है जो कि मैं सुन के खुद हैरान हूँ कि अच्छा ये चीज़ें मेरे अंदर पाई जाती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये बताया ना कि स्टार्टिंग लाइफ मेरी ऐसी है कि मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा मतलब उनका की रोल है हमारी फाउंडेशन बनाने में, मेरी और मेरे बहन भाइयों की। और इसके अलावा ये है कि जैसे आपने इसका ये कि आप जो मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, इसका आपने एक टाइटल जैसे ये रखा है कि एम्पावरमेंट, वेमेन एम्पावरमेंट। देखिए, वेमेन एम्पावरमेंट जो है वो तो घर से ही शुरू हो जाती है। आपके पेरेंट्स अगर आपको एनकरेज करते हैं, वो अगर आपको सहूलतें मुहैया करते हैं, आपको अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, जिसके लिए बड़े सेक्रीफाइसेस भी करते हैं, तो वो आपको वहीं से एक एम्पावरमेंट जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो आपको मोटिवेट भी करते हैं। फिर उसके बाद आप जब अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, आपको अच्छे टीचर्स अगर मिलते हैं, तो टीचर्स भी जो है वो आपकी ज़िंदगी में बड़ा असर डालते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो खुशकिस्मती की बात है कि मैं अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे दोस्त मिले। दोस्तों ने भी जो है वो बहुत एनकरेज किया। तो ओवरऑल आई वुड से कि मैं एक लिहाज से एक प्रिविलेज्ड पर्सन हूँ। और मैं इस सिलसिले में क्या कह सकती हूँ कि मुझे जो है वो जिंदगी में बड़ी मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिली है। मैं अपने असातिज़ा से, टीचर्स से, और हर लेवल के टीचर्स से, चाहे वो स्कूल टीचर्स हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उनसे बहुत मुतासिर रही हूँ। मुतासिर इन द सेंस कि मुझे टीचर्स ने हमेशा जो है वो गाइड किया। अच्छा, इसके बाद जब मैं यहाँ कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके फिर मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई एमफिल करने, फिर उसके बाद एक पीरियड है जिसमें मैंने पीएचडी किया। फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर से मेरा सिलसिला जो है वो बहुत पहले शुरू हो गया। ये 1989 की बात है, जनवरी 1989 में आई वाज अपॉइंटेड एज द रिसर्च असिस्टेंट इन ग्रेड 16। तो ये सफ़र जो है 35 साल पहले शुरू हुआ। और वहाँ एआरसी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ पे जो मेरे सीनियर टीचर्स थे, मेरे कोलीग थे, सीनियर कोलीग्स थे, उन्होंने जो है वो मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत मोटिवेट किया। और उनकी वजह से, उनकी एनकरेजमेंट की वजह से मैं इस काबिल हुई कि फिर मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई, वहाँ से मैंने एमफिल किया। मुझे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिला था और वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वापस आई। फिर रिसर्च और टीचिंग का सिलसिला चलता रहा। फिर मेरा ख्याल है 8 या 10 साल गुजरे, फिर मैंने पीएचडी किया। उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क गई और एचईसी की स्कॉलरशिप थी जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर ने मुझे दी।
3 साल का पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए, तो वो मैंने किया। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि चूंकि मैंने 35 साल 35 इयर्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर में गुजारे हैं, रिसर्च असिस्टेंट से लेके प्रोफेसर के लेवल तक, पहले पीएचडी किया तो डॉक्टर बनी, फिर उसके बाद प्रोफेसर बनी। तो ये जो मराहिल, जिन मराहिल से मैं गुजरी हूँ, तो वो मेरे नाम के साथ जो है, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि जहाँ पे भी मेरा नाम पुकारा गया किसी भी कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो या लोकल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो, तो मेरे नाम के साथ जो है अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर का नाम जो है वो उसका जिक्र हुआ। जाहिर है दैट आई कम फ्रॉम द अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर। तो ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि ये वो इदारा है जो जो मेरी पहचान बना, हर लेवल पे मेरी पहचान बना। और मुझे मैं इस बात पे बहुत फख्र करती हूँ। और ये इदारा जो है वो बड़े अच्छे यहाँ पे इकोनॉमिस्ट यहाँ पे होते थे, अभी भी हैं। कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपना दुनिया में ना नाम पैदा किया, बल्कि पाकिस्तान के बड़ी बड़ी अहम पोजीशंस पे, मिनिस्टर लेवल पे, डॉक्टर हफीज पाशा जो हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। हफीज शेख साहब हैं, डॉक्टर हफीज शेख, वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। डॉक्टर वकार मसूद साहब हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जो एईआरसी से निकल के गए हैं, फिर इन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया। मैं इन लोगों से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। डॉक्टर तारिक बिन नौरी हैं जो मेरे टीचर भी थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाई थी, ये एक बहुत बड़ा नाम है। तो लिहाजा मैं यही कह सकती हूँ कि अच्छा, ये एक और सवाल आपका ये था इंट्रोडक्शन जब आपने कराया डॉक्टर मदीहा, कि ये विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मेरा क्या ख्याल है या मैं क्या सोचती हूँ। देखिए, चैलेंजेस जो है, ये बात तो सही है, इसमें तो बिल्कुल ये हकीकत है कि मर्द हजरात से ज़्यादा ख़वातीन को न सिर्फ हमारी सोसाइटी में बल्कि बाहर भी, दूसरे एडवांस कंट्रीज में भी इतनी ज़्यादा जो है वो आसानियां नहीं मिलती हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी बगैर चैलेंजेस के तो कोई ज़िंदगी नहीं होती। यू हैव, आई मीन, यू हैव टू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो लिहाजा मेरी जिंदगी में भी बड़े चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है। और मैं जो ख़वातीन सुन रही हैं, जो यंग अगर स्टूडेंट्स भी हैं फीमेल, वो अगर सुन रही हैं, तो मैं उनको ये कहूँगी कि चैलेंजेस से कभी नहीं घबराना चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आप चैलेंजेस से घबरा गए तो फिर आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो चैलेंजेस आपके सामने लेके आता है आपको टेस्ट करने के लिए। और अगर आप उस टेस्ट में कामयाब होते हैं तो आप यकीन रखें कि अल्लाह ताला जो है वो आपको न सिर्फ उस चैलेंज से आसानी से गुजार देता है, बल्कि आपके लिए मजीद जिंदगी में सहूलतें पैदा हो जाती। तो यू हैव टू हैव परसिवेरेंस जिंदगी में। बस ये याद रखें, परसिवेरेंस इज द की, कीप ट्राइंग। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि ये सिर्फ खवातीन की मुश्किलात का जिक्र जिंदगी में आता है, मर्द हजरात भी बड़े चैलेंजेस से गुजरते हैं। लेकिन खवातीन के साथ थोड़े से सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी हैं। सोसाइटी में जो है वो इतना खवातीन का बड़ा एक्टिव रोल जो है उसको अब तक शायद एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन मैंने हमेशा अपने लिए जो है वो ये कहना चाहिए ना कि जो आई यूज्ड टू फील वेरी, बहुत मैं पुरसुकून महसूस करती थी जब मैं अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती थी। व्हेन आई यूज्ड टू सी माय स्टूडेंट्स, दोज हु आर, मेरे ख्याल है कि इस वक्त तो माशाल्लाह में हमारे स्टूडेंट्स एईआरसी के बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। लेकिन मेरे लिए वो बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर था व्हेन आई यूज्ड टू टीच। एंड होपफुली इंशाल्लाह मैं टीच तो करती रहूंगी, बिकॉज टीचिंग इज माय पैशन। तो जब आप एक फोकस्ड होकर टीचिंग करते हैं, अब आप अपने स्टूडेंट से जब इंटरेक्ट करते हैं, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। मेरे लिए तो ये टीचिंग जो है ये बड़ा सेल्फिश समझिए जॉब थी मेरी। सेल्फिशनेस इन द सेंस, आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, बिकॉज फ्रेश माइंड जो है ना वो आपको बड़ा मोटिवेटेड रखते हैं। और आप खुद जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो जी मैम। स्टूडेंट से तो हम कहते हैं भाई मेहनत करें, पढ़ें,
ये आपकी जिंदगी जो है अभी आपको पढ़ लेना चाहिए आपकी जिंदगी बनाने के लिए। तो जाहिर है जैसे हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते थे, मैं भी मोटिवेट करती थी, लेकिन मैं उनको ये भी बताती थी कि देखिए आपकी वजह से मेरी भी बड़ी लर्निंग होती है। तो टीचिंग हैज ऑलवेज बीन माय पैशन। रिसर्च ये है कि जाहिर है कि रिसर्च सेंटर था तो रिसर्च भी मैंने बहुत की। मैंने अपने लिए एक फोकस्ड डिसिप्लिन जो है वो इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि एंड जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ऑल दिस वेरी रिलेटेड एरियाज, ये उस वक्त मुझे ये एरिया में काम करना जो है वो मैंने शुरू किया और अपना रिसर्च की। तो एमफिल में हमें ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ऑफर किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस किया गया। तो फिर वहाँ पे जो है डॉक्टर टिमोथी सॉनसन थे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, वो विजिटिंग पे थे वहाँ पे, तो उन्होंने हमें पढ़ाया। वहाँ से जो है मुझे इस एरिया में बड़ा उसमें शौक हुआ। फिर मैंने उसमें काफ़ी रिसर्च भी की है, मेरा पीएचडी का थीसिस भी उसी जी मैम। एरिया से रिलेटेड है। तो ये ज़रा मुख्तसर है टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ माइंड। तो ये मैंने मैम व्हेन यू आर लुकिंग बैक इन योर पास्ट, तो मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा ऐसा प्राउड मोमेंट लगता है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोफेशनल लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ या करियर लाइफ। ऑब्वियसली बैलेंस तो आपने बताया कि बैलेंस तो लाइफ को बीइंग ए वुमेन हमें हमेशा ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन व्हेन यू फील मोर प्राउड इन द व्हेन लुकिंग बैक इन योर पास्ट, तो आपको क्या लगता है वो दैट वाज माय रियली वेरी प्राउड मोमेंट। कोई भी ऐसा कोई इवेंट कोई इस तरह का प्लीज हमसे शेयर करें। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं प्राउड तो आई वुडंट से कि मैं प्राउड फील करती थी। मैं तो बड़ा हम्बल फील करती थी। हम्बल इन अ सेंस कि देखिए डॉक्टर मदीहा आप भी जानती हैं, और क्योंकि आपने भी जाहिर है कि एक अरसा गुजारा है एकेडमिक्स में, और भी हमारे यहाँ पे जो ख़वातीन साथ मौजूद हैं उन्होंने भी एक टाइम गुजारा है एकेडमिक्स में। तो अब प्राउड मोमेंट इसलिए मैं कह सकती हूँ, या पता नहीं प्राउड लफ्ज़ जो है वो सही भी है या नहीं, कि जो एफर्ट मैंने की है, कभी कोई कॉन्सेप्ट पेपर लिखा है, वैसे एक कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर लिखा है, जब वो एक्सेप्ट हुए हैं मुख्तलिफ टाइम्स में, तो वो मुझे उस वक्त ये फील होता था कि मेरी एफर्ट को एक्नॉलेज किया गया है। और ऐसे बहुत सारे मौक़े आए हैं। और इन किस किस को याद किया जाए, बस मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने जब दिल से एफर्ट की है ना, जैसे कोई अच्छा कॉन्सेप्ट पेपर लिखा है और वो मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो है वो उसको भेजा, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अच्छा, और फिर फंडिंग के लिए मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, वो एक्सेप्ट हो गया। तो जब आप दिल से एफर्ट करते हैं और आप जो है वो सही नीयत के साथ एफर्ट करते हैं, तो अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड देता है। और उससे अच्छा, एक तो मेरा जो एडमिशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली। दैट वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। फिर मैंने पीएचडी किया, तो वो भी देखिए ये वो अचीवमेंट्स हैं मेरी, एमफिल करना, पीएचडी करना, प्रोफेसर बनना, जो ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी। तो जब ये ख्वाहिश उनकी पूरी हुई, जब वो दुनिया में भी नहीं रहे, जब तो वो, लेकिन ये कि बहरहाल उनकी रूह को तो पता चला होगा कि मैंने वो चीज़ें अचीव की हैं जो वो चाहते थे। तो इसी इन्हीं चीज़ों को मैं समझती हूँ कि मेरे लिए जो है, इफ आई वुडंट कॉल इट अ प्राउड मोमेंट, आई वुड से दैट इट्स अ हम्बलिंग एंड वेरी मोटिवेटिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। मैम इफ यू अलाउ अस, तो हम किसी क्वेश्चंस ले लें, कोई जरूर, आपसे कुछ शेयर करना चाहे। जरूर, बिल्कुल। जी, एनीवन जो मैम से कोई भी चीज शेयर करना चाहे, उनसे डिस्कशन करना चाहे, ऑल ऑफ यू आर वेलकम। एंड प्लीज हाथ हैंड रेज करें जो भी है, या यू कैन ओपन द माइक। प्लीज एनीवन। काइंडली डॉक्टर सोफिया अनवर साहबा से क्वेश्चन ले लें। मेरी टीचर भी हैं और सुपरवाइजर भी, अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। एक तो मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर सोफिया अनवर साहबा को, और आज इनकी ज़बानी सुनेंगे। और ये हमें बड़ी खुशी होती है कि जब एक वेबिनार हो रहा हो और एक वर्चुअल वर्ल्ड में एक इस्लामाबाद बैठा हुआ है, एक लाहौर बैठा हुआ है,
और वो आपको ज्वाइन करता है और वो अपनी लाइफ मूवमेंट जो है ना वो एक सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो डॉक्टर सोफिया अनवर साहबा, मैडम मैं आपको वेलकम करता हूँ, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। वेलकम टू स्मीना। मैं तो जस्ट अभी मैसेज फेसबुक पे देखा, तो मैंने कहा अभी मैडम को हेलो हाय करें, काफी दिन हो गए हैं गुफ्तगू किए हुए। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। हाँ मेरे ख्याल हाँ में यस लास्ट मैंने जब आपको यूज किया था, दैट हाँ वाज मैम, इट इज अच्छा। ऑलमोस्ट 2 to 3 years आई थिंक। काफी देर हो गई है, तो बस हाँ, चक्कर मोर देन लगाएं दैट। कभी अब। हाँ, तो मैं तो हाँ, क्वेश्चन ये इंशाल्लाह। करूंगी, अब मैं देखिए बाकी सारी चीजों से तो देखिए मैं भी वाकिफ हूँ, हमने काफी दफा है। मुझे ये बताइए रिटायर होने के बाद कैसा फील होता है, एंड हाउ यू कंट्रीब्यूट अगेन इन दैट योर जर्नी? डॉक्टर सफिया, आपको ना यकीन नहीं आएगा। आप हम्म। बखुदा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि मेरे रिटायर होने के बाद ना मुझे और भी ज्यादा बर्डन फील हो रहा है। क्योंकि जाहिर है कि मैं बहुत अरसे से बहुत सारी चीजें प्लान कर रही थी ना। जैसे मैं एक ये किताब लिखना चाहती, तो मुझे ऐसे लग रहा हम्म। है कि तो रिटायर होने के बाद अभी बहुत सारी चीजें करनी है। तो ये आई डोंट हाँ, थिंक फ्री फील करेंगे आप, तो बिल्कुल ये फील करेंगे कि आपके ऊपर अभी बहुत बर्डन है। तो मुझे ऐसा इट लग इज नहीं रहा सिमिलर कि लाइक दैट, क्योंकि हम भी हम्म, कीप पेंडिंग पे चलते हैं ना, ये वाला प्रोजेक्ट अभी रख लेते हैं, क्योंकि जो हाँ, फौरी तौर पे हमें प्रायोरिटाइज करते हैं बस उसको कर लेते हैं, ये कब फिर करेंगे। अब जैसे अब आपने मेंशन किया, हम भी करते हैं, अच्छा इस टॉपिक के ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, इसके ऊपर जी, ये करेंगे, बिल्कुल। जैसे एक क्योंकि एक हम भी चीज और है। हाँ, मुझे मुझे छोटे बच्चे जो हैं, जो प्राइमरी क्लास के हैं या स्कूल पे मैट्रिक लेवल तक के हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का बहुत शौक है। मैं समझती हूँ कि अब मेरे पास हम्म। इतना टाइम है कि मैं स्कूल विजिट करूं और बच्चों से मिलूं। तो ये भी एक काम है जो मैं करना चाहती हूँ, अपनी खुशी के लिए करना चाहती हूँ। और बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि हमारे जमाने के बच्चों में और आजकल के बच्चों में क्या फर्क है, ये मैं देखना चाहती हूँ। मैडम एक और चीज पे था, मैं आजकल यहाँ पे भी एक दो प्लेटफॉर्म्स पे मैंने इस चीज को इनिशिएट किया। एक साइड पे हम बहुत ज्यादा ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स पे ये बात कर रहे हैं कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए या बिजनेस से रिलेटेड वर्किंग को, और बिल्कुल। दूसरी तरफ हमने अपने तमाम स्टूडेंट्स की जो स्टडी है, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप उसने एक दिन नहीं सीखनी, मुख्तलिफ फील्ड्स में। अब जिस तरह वो उसके पास है, वो नफा नुकसान के सवालात हम मैट्रिक में करते थे, मीन दैट वाज पर्टेनिंग टू द बिजनेस। अब वो वाली हाँ, चीजें हमारी खत्म, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है या कॉमर्स से रिलेटेड बेस इकोनॉमिक्स ही बनेगी ना, मदर ऑफ ऑल। तो वो जो है वो स्कूल लेवल पे बच्चों को अगर हम नहीं देंगे रिलेटेड टू दैट नॉलेज, तो वो बिजनेस में कैसे फ्लरिश करेंगे? हमने ये सब्जेक्ट टोटली रख दिया है सिर्फ बीएस लेवल पे, इसके लिए अब हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। आप भी बिल्कुल आए हम बिल्कुल। सारे मिलके कि ये नहीं, बच्चों आप को, क्योंकि वो किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन हाँ, वो बिजनेस की लर्निंग में, क्योंकि सारी देखिए जॉब तो मिलती नहीं है, हैं भी नहीं, बिल्कुल। लेकिन बिजनेस माइंड बनाना बच्चों को जो है, वो पहले उसको जब तक प्रॉफिट रेवेन्यू लॉस ये चीजें सेल्स हम नहीं बताएंगे, वो क्या करेगा? आप ये देखिए, इसके लिए जो बेहतरीन मॉडल मैंने देखा था, ये मेरा अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जब मैं जापान में थी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, तो मैं तकरीबन 10 वीक वहाँ पे थी। वहाँ पे वो हमें बच्चों के स्कूल ले गए थे। वहाँ पे तो आपको पता है ना कि जो वहाँ पे जाते जी हैं जी। ट्रेनीज, जो वहाँ पे जापान में जाते हैं, वो बड़ी डाइवर्सिफाइड उनकी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें वो इन्वॉल्व करते हैं। तो वो स्कूलों में जब लेके गए हमें, तो मुझे ये फील हुआ कि ये बच्चों को सिर्फ किताबी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनको मुख्तलिफ चीजें सिखा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, कुछ वीडियोस भी ऐसे सामने आई हैं, और ये एग्जाम्पल जापान से ही आ रहे हैं। तो ये वो मॉडल इतना इंटरेस्टिंग है और इतना मुझे लगता है कि बेनिफिशियल है कि अगर इसको अडॉप्ट किया जाए ना पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा मसला हल होगा। न्यू ये जनरेशन तो वो है जिसका माइंडसेट बनाने की जरूरत है। जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के, इनका माइंडसेट अगर इस तरह का बन जाए, इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, और जापान से वो मॉडल अगर हम ले लें और उसको इम्प्लीमेंट करें और बड़ी सीरियसली करें, ये जस्ट नॉट जस्ट फॉर फन बट ऑल्सो। और आपको पता है, ये फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं, बच्चों का जहन उस वक्त बन रहा होता है। अगर उसी वक्त, आई टोटली एग्री विद यू, आपने तो बड़ा अच्छा ये इस वक्त जो है वो
मेरा एक्सपीरियंस भी याद दिला दिया। तो इस पे काम करने की जरूरत है, इसमें कोलैबोरेटिवली काम करने की जरूरत है हर प्रोविंस के बिल्कुल, लिए। देखिए क्योंकि मैं भी इसी हवाले से थी कि इवन जो बच्चों की गेम्स बन रही हैं उसके जरिए जो कुछ स्मॉल बुक्स या स्टोरी, क्योंकि हम टोटली डिपेंड कर गए हैं कि जनाब बच्चे ने पढ़ना है, चाहे एमबीए करना है, बीबीए पढ़ना है, उसने कॉमर्स करनी है, एंड देन ही हैज टू और शी हैज टू सीक द जॉब। तो उसके हाँ अलावा इवन जो बिल्कुल। आपके साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन उन सब के साथ भी रहता है। एक बहुत अच्छा बच्चा है, स्टूडेंट है, जिसने बहुत एक अब इनोवेटिव आइडिया पे काम करता है, प्रोडक्ट बना लेता है, उसके बाद उसे ये नहीं पता कि मैंने उसको मार्केट कैसे करना है। उसको फिर उस वक्त मार्केट से रिलेटेड काम के लिए जो एक वर्किंग चाहिए, उसके लिए फिर उसको काफी टाइम लग जाता है। तो अब हम चाहे वो केमिस्ट्री का है, वो बायो का है, वो फिजिक्स का है, वो मैथ का है, वो कैलीग्राफी पढ़ा है, एनीथिंग, लेकिन उसका माइंड सेट बिजनेस की तरफ लाने के लिए उसको फ्रॉम वेरी स्टार्ट से हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब मैं भी बिल्कुल। एक्सपेक्ट करती हूँ आप भी, हम थोड़ा सा चाहे थ्रू कॉलम्स लिखें, चाहे कि रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स जो है वो स्कूल लेवल की जो स्टडी, जब तक हम नहीं शुरू करेंगे हम बच्चों में एक ऐसा सब्जेक्ट, तो हम ये बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ इसको लाजमी लाएं इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन द एंटरप्रेन्योरशिप, तो फिर हम इस पे चल सकेंगे। बिल्कुल सही बात है, आई टोटली एग्री विद यू। ओके मैम, एंड नेक्स्ट प्लान करें फैसलाबाद का तो इंशाल्लाह, मैं बल्कि इरफान को कहती हूँ कि हम रखते हैं वेदर में हम कोई कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट, तो फिर हाँ उसको हम प्लान करते हैं ताकि सब लोगों को बुलाया जा सके। जरूर, थैंक्स मार्च सो के बाद मच। आप रखें, क्योंकि आजकल बहुत सर्दी है, पंजाब में थैंक भी यू बड़ी मैडम साहब, थैंक यू मैडम हाँ, साहब, थैंक थैंक यू, यू। ओके थैंक यू, थैंक थैंक यू डॉक्टर सोफिया। एंड ओके। मैं अब मैम सरीना खालिद से विदाउट प्लेइंग द वीडियो, हमने एक आपके लिए एक छोटी सी वीडियो भी बनाई हुई है टू ट्रिब्यूट यू। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को, स्पेशली जो प्रोफेशनल जर्नी में है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि लाइक वो आपके फूड स्टेप्स पे को अगर फॉलो करना चाहें, आपकी क्या सजेशन होगी कि यू हैव टू डू दिस दिस दिस। तो यू। काइंडली इस पे थोड़ा सा हमें हाईलाइट करें। और उसके बाद जो है आई वुड रिक्वेस्ट इरफान साहब के वो जो हैं आपके वो जो ट्रिब्यूट के लिए एक छोटी सी वीडियो बनी हुई है, वी डोंट हैव मच, लेकिन ये कि वो फिर उसको काइंडली प्ले कर दे मैम के लिए। तो मैम पहले आप काइंडली हमारी ऑडियंस को कोई स्पेसिफिकली कोई खास मैसेज प्लीज दें जो उनकी प्रोफेशनल जर्नी में उन्हें एम्बार्क करे, और आपके फूड स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम भी आपको फॉलो करते हुए वी कैन डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन देखिए आवर लाइफ। डॉक्टर मदिया, आपको तो ये पता है ना कि फुट स्टेप्स को फॉलो ये करें, ये तो आपने मतलब फिर एक शर्मिंदा करने वाली बात की है। मैं ये समझती हूँ कि मुझे जिंदगी में अभी और भी बहुत सारे काम करने रह गए हैं, लेकिन ये बात हमें जो है याद रखनी चाहिए कि जिंदगी बगैर चैलेंजेस के कोई जिंदगी नहीं होती। हर हर मरहले पे आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस का, आपको आम जिंदगी में भी चैलेंजेस का सामना है ना, सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं। आपको तो आम जिंदगी में आप घर से बाहर निकलेंगे, आप मुख्तलिफ चैलेंजेस आपके सामने आ जाते हैं। चैलेंजेस से घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं हमेशा जी से ये जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी कोटेशंस में बड़ी इंटरेस्टेड थी। मैंने बहुत बड़ी एक कलेक्शन की थी बड़े नामी गिरामी साइंटिस्ट के और फिलोसोफर्स के कोटेशंस को। तो मैं एक दो कोटेशंस आपको थोड़ा सा इस वक्त बताती हूँ। जैसे आइंस्टाइन की एक बड़ी अच्छी कोटेशन है। आइंस्टाइन ने कहा था कि इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विथ प्रॉब्लम्स लॉन्गर। यानी मैं तो, वो समझते थे कि वो स्मार्ट नहीं है, सारी दुनिया उनको जाहिर है बड़ा इंटेलिजेंट जीनियस स्मार्ट, लेकिन वो खुद अपने बारे में ये कहते हैं कि मैं तो नहीं समझता कि मैं कोई स्मार्ट हूँ, मैं बस ये करता हूँ कि प्रॉब्लम्स को छोड़ता नहीं हूँ। यानी अगर प्रॉब्लम है, यानी वो चैलेंज ही हुआ ना उनके लिए, तो उस चैलेंज से मैं बददिल होके कि ये तो मेरे से नहीं हो रहा, ये तो मैंने इतनी एफर्ट कर दी फिर भी नहीं हो रहा, तो ही डिडंट यूज टू लिव इट, यानी वो छोड़ नहीं देते थे। तो ये तो आइंस्टाइन ने खुद अपने बारे में कहा। तो मेरा मशवरा तो यही है, आप किसी भी चैलेंज को, किसी भी प्रॉब्लम को पूरी कोशिश करें अपने हद तक, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे अल्लाह ताला भी फिर आपका साथ नहीं देगा। तो मैम आप मेरे को इस बात पे ईमान है कि आपकी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती हैं। लेकिन ये कि परसिवेरेंस एक इंग्लिश का लफ्ज है, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट रहें। जब आपकी मैम नीयत, आपने तो आपकी नीयत साफ है, अल्लाह ताला आपके साथ है, और आप परसिस्टेंट हैं जिंदगी में।
जी मैम, बेसिकली आपने एक ही जो एक सेंटेंस बोला, मेरे यहाँ से सारे का सारा एक्सपीरियंस उसी में आ गया है कि आप परसिस्टेंस में, और जो आइंस्टाइन का आप बता रही हैं कि चैलेंजेस को अगर हम उस फेलियर से डरे बगैर करते जाएंगे तो वही डेफिनेटली विल बी सक्सीडेड। देखिए मैम, ये उस टाइम पे जब आप उस फेज से गुजर रहे होते हैं, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो जो फेजेस आती हैं आपकी लाइफ में, इट्स नॉट इजी। आप बेशक चैलेंजेस की बात है, बट समटाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल एट दैट टाइम, आई थिंक एट दैट स्पॉट लूज कर जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो हाँ, दैट्स तो इसीलिए जो मेन है, आप बल्कि आप जो बार बार ये कह रही हैं कि मुझे शर्मिंदा करें, हम शर्मिंदा हो रहे हैं कि यू डिजर्व मच मोर। तो ऑब्वियसली वी कुड नॉट जस्टिफाई। मैं आपके साथ जस्टिफाई तो नहीं कर रही, मतलब आपने जितना किया है एंड वट एवर इज यू डूइंग फॉर अस, ऑब्वियसली जो कुछ भी आपका नॉलेज है वो अपने फुट स्टेप और इम्पैक्ट छोड़ेगा इंशाल्लाह, और हम उससे मुस्तफीद भी होते रहेंगे। तो अभी राइट नाउ मैम सफिया मिनहाज फिर कुछ कहना चाह रही हैं आई थिंक आपसे। तो आई वुड जरूर। रिक्वेस्ट हर कि, हाँ जी मैम, आप अपना माइक ओपन करके हाँ जी, मैंने काइंडली। ओपन कर लिया। नहीं, मैं डॉक्टर समीना के बारे में ये जरूर कहूंगी कि इन्होंने जिस तरह से एफर्ट की है, क्योंकि इनकी जर्नी मैंने भी देखी है। मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में होती थी, ये जो है ईआरसी में होती थी, और हमारा और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और ईआरसी का बड़ा एक तरह से कह लेंगे दोस्ती है। हम लोग एक दूसरे की ताल्लुक एफिलिएशन है। में रहते, एफिलिएट्स एक दूसरे की। तो जिस तरह से इन्होंने अपना पीएचडी में, फिर प्रोफेसर, फिर अपना डायरेक्टर, जो इन्होंने एफर्ट की है, तो ये वाकई में, जो मैं लड़कियों के लिए स्पेशली कहूंगी, खवातीन के लिए, कि वो इस तरह से अपनी जगह बना सकते हैं। ये किसी के साथ लिंक नहीं है। ये नहीं कहा जाए कि समीना खलील अगर बनी है तो वो किसी की वजह से बनी है, या किसी, ये अपनी सारी मेहनत से, खुद अपनी मेहनत से बनी और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो इनको हम कहेंगे ये खुद एक इंस्टीट्यूट है, तो इनसे सीखना चाहिए कि आप बगैर किसी के सहारे कैसे अपनी पहचान बना सकते हैं। लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी वो। तो ये बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि इनकी एक अपनी कोशिश, एक अपनी मकाम बनाना बगैर किसी सीढ़ी को इस्तेमाल किए हुए, बहुत बड़ी बात है। तो मैडम, हम आपको सलाम करते हैं, सल्यूट पेश करते हैं। और यकीनन मैं पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम को ये कहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी पेशरफ्त की है कि कोई रिटायर अगर हो रहा हो, वैसे तो ये हमारे ग्रुप में वैसे ही रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी और काम करेंगी, बड़े बड़े काम करेंगी, लेकिन इस तरह से ट्रिब्यूट पेश करना बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा। तो ये इरफान साहब को मेहनत जाती है, पूरी टीम को जाती है, और मैडम वाकई आपको तो अल्लाह मियाँ और कामयाब करे माशाल्लाह से। बहुत 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 शुक्रिया सफिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। असल में सफिया मेरी दोस्त हैं, बहुत पुरानी दोस्त हैं। तो सफिया ने जो कुछ कहा उसको मैं क्या कहूँ, अब दोस्त तो यही बातें करेंगे ना, फिर क्या नहीं करेंगे। नहीं मैडम, ये रियलिटी है। मैंने कोई ऊपर की बात नहीं की। मैंने आपको देखा है कि आपने किस तरह से एफर्ट करके, किस तरह से एआरसी को उठाया है, कहाँ से उठा के फिर कहाँ ले गई, तो वो मैंने देखा हुआ है। तो इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि बहुत जबरदस्त। बहुत थैंक शुक्रिया सर। थैंक यू डॉक्टर सफिया मिनहाज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई आपके बारे में, जो हमें मतलब देखें, अपनी अपने एफर्ट्स की बेस पे एक प्लेस को, मेरे ख्याल से परसिस्टेंट वे में, जैसे आप कह रही हैं कि परसिस्टेंस होनी चाहिए ओनली, उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैंने यही इसीलिए क्वेश्चन किया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू फेस चैलेंजेस और हम डिसहार्ट हो जाते हैं, एंड वी समटाइम्स लीव आवर एफर्ट्स। तो आपने उस चीज को कर दिखाया। तो इसलिए ट्रिब्यूट के अलावा भी बहुत से आपके लिए जो हैं बहुत सी चीजें हैं जो आई वुड लाइक टू से फॉर योर ऑनर एंड फॉर टू ट्रिब्यूट यू। तो अभी जो है इरफान साहब, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें बिफोर we wind up the program. Anyone who want to share something with doctor and ask some questions? Otherwise फिर मैं ही पूछी जाऊंगी मैम से questions. तो कोई भी जो पूछना चाहे, कोई मैम से कोई अच्छी फीडबैक लेना चाहे, तो काइंडली यू कैन शेयर। यहाँ पे मेहरुन्निसा मुझे नजर आ रही है, ये मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं। मैं ख्याल है कि मेहरुन्निसा को भी कुछ कहना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर आई वाज। इरफान, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछें। मेरा ख्याल है ये पहली दफा आपसे वेबिनार पे गुफ्तगू हो रही है।
सबसे पहले तो इरफान, मैं आपकी जी थैंक यू थैंक कहना यू चाह- डॉक्टर समीना खलील साहबा। एक तो आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ, जी जी, आ रही है। डॉक्टर साहबा आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैडम मेहरून निसार साहबा आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज। हाँ, म्यूट हो। आ, म्यूट तो नहीं। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मेरी नहीं, आवाज आ रही? हाँ, आ रही जी अब आ रही। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप, ठीक आ हैं? रही। साहब, बड़ी खुशी हुई आपको इतने अरसे बाद देख के। क्या हाल है? अ, मैडम हमेशा कोशिश करती हूँ आपसे बात हो, मुलाकात हो, तो कोई बहाना तलाश करते हैं। जब तक मैं कराची आना जाना रहा तो आपसे मुलाकात रही। अब बिल्कुल। उसके बाद बस मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ मैडम। मुझे हाँ कोई हाँ हाँ। 3 to 4 months यहाँ पे हुए। तो अच्छा। आपसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। अब यहाँ पे ये कहने का जरूर बड़ा अच्छा मौका मिला, और एक प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया गया, जो बहुत अच्छा एक मौका है। और 6 से आपको जानती हूँ, उसके बाद अंडर सुपरविजन रही। और आप की मैं अक्सर एग्जाम्पल बहुत लोगों को देती हूँ, प्रोफेशनल लोगों को भी, और अपने ही प्लेटफॉर्म पे जो लीडिंग लोग हैं, मैं समटाइम उनको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ कि मुझे हमेशा ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान में ऐसे लोगों को बड़ा जो है वो मॉडल, रोल मॉडल के तौर पे लेना चाहिए। लेकिन आम तौर पे लोग ले नहीं पाते। शायद मुझे पता नहीं यहाँ पे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन जो सच है, हकीकत ये है कि पाकिस्तान में शायद लोग कदर नहीं करते बड़ी अच्छी क्वालिटीज रखने वाले, जो लीडरशिप की क्वालिटीज रखने वाले लोग हैं। और इस तरह से मैं लकी हूँ कि मैंने अपने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, और एआरसी के जो एक प्रोफेशनल और एकेडमिक जो प्लेटफॉर्म है, उसमें बड़ी अच्छी लीडिंग क्वालिटीज, लीडरशिप की क्वालिटीज रखने वाले लोगों से के अंडर में रही। और आपके अंडर भी मैंने थीसिस किया, और माशाल्लाह से आप को मैंने बड़ा ही सिंसियर, not only for the student, for the department, also for the country, कि आपको मैंने इतना, आप उन चंद लोगों में से हैं कि जो आज के दौर में हमें बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, जो अपने कंट्री के साथ सिंसियर हो के काम करने की बहुत वो एक एम भी रखते हैं और विजन भी रखते हैं। तो विजनरी लोग बहुत कम देखने, शायद पता नहीं मैं फील करती हूँ या शायद बाकी भी लोगों को ऐसा फील होता हो, मैंने तो हमेशा महसूस किया है। तो कुछ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे भी 1-2 लोग मुझे इसी तरह से मिले, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे नजर आए, जिनमें से एक आप हैं। तो ये रियलिटी है मैडम, कि इस तरह की क्वालिटीज जो हैं वो आपकी हमेशा देखी हैं, और आप एक रोल मॉडल के तौर पे भी हमारे जो है वो यादों में भी हैं, और हमेशा आप का हम हवाला भी देते हैं, आपका जिक्र भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते उनको भी बताते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरुन्निसा। एक तो आपको यहाँ पे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं आपके बारे में ये बताऊं, आप ये कह रही हैं कि आप मेरे बारे में लोगों से जिक्र करती हैं। मैं आपके एग्जाम्पल जो है अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, कि मैं आपके बारे में ये कहती हूँ कि मेहरुन्निसा मेरी वो स्टूडेंट थी जिसको मैंने इतनी ज्यादा मेहनत से पीएचडी करते हुए देखा। इतनी ज्यादा मेहनत से, जबकि आप दूसरे शहर से आई थी। कराची आपके लिए जाहिर है कि नया शहर था। वहाँ के एक नए शहर में रहना, वहाँ के मसाइल जो जाहिर है नए लोगों को वहाँ पे होते हैं। आप हॉस्टल में भी रही हैं। तो आपने जो जिस किस्म की एफर्ट की है, मेरे ख्याल है कि यू डिजर्व अ लॉट ऑफ प्रेज। तो मेरे दिल में आपकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आप एक ऐसा रोल मॉडल हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत मुशक्कत करके डिग्री हासिल करते हैं। तो आपकी डिग्री जो है पीएचडी की, जो आपने यहाँ से कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की, तो वो मैं तो आज सल्यूटेड, मैं आपकी मेहनत की बहुत कदरदान हूँ। आपने जिस तरीके से डाटा कलेक्ट किया था,
जेन्युइनली जी आपने जो है कितना जेन्युइन काम किया। ये नहीं कि जी आपने बस इधर उधर से जो है वो चीजें जमा करके किसी तरीके से पीएचडी कर लिया। नो, योर एफर्ट्स आर रियली रिमार्केबल। आपने माशाल्लाह बड़ी मेहनत से अपना मकाम बनाया, फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में आपकी जॉब भी हो गई। तो आप जैसे लोगों को जो जेन्युइन मेहनत करते हैं, जिंदगी में अपना मकाम बनाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है। अब माशाल्लाह आप जिंदगी में सेटल्ड हैं। मेरी दुआ है जी कि अल्लाह ताला आपको भी बहुत तरक्की दे। तो आप भी एक रोल मॉडल हैं, आप मेरे लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं। मैडम, आपका एक जो पॉइंट है ना जो हमेशा मैं फॉलो करती हूँ, एक्चुअली मैं आपको फॉलो भी करती हूँ, तो शायद कहीं इंसान थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है पाकिस्तान से, वेरी वेल, अब तो बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट होने वाली सिचुएशन है। दैट्स वाई मैं लॉन्ग टाइम के लिए स्विच किया है मैंने सऊदी अरब में, और रिसेंटली मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा कांटेक्ट भी डेवलप कर रही हूँ। और आपकी एक बात जो हमेशा मुझे याद रही है और मैं फॉलो भी करती हूँ, शायद मैं पेसिमिस्ट हो जाती कभी, लेकिन आपने हमेशा एक वर्ड मुझे याद रहा कि जब भी कभी कोई डिस्कशन होती थी आप कहती थी मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। हाँ, आप ये बात तो सही है। मैं बॉर्न ऑप्टिमिस्ट हूँ जी। वो जिसे कहते हैं ना, अंग्रेजी का एक लफ्ज है जी इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट। अगर मैं इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट का मतलब है ऐसा ऑप्टिमिस्ट जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, किसी भी हालत में जो है वो पेसिमिस्ट नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है मेहरुनिसा, अगर जी जिंदगी में आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई दफा कहा कि चैलेंजेस तो हर एक के लिए होते हैं, लेकिन अगर जी आप जिंदगी में ऑप्टिमिस्ट रहें, और देखिए इसके अलावा आप ये देखिए कि एक चीज जो है, जो मैं जिसको समझती हूँ मेरी जिंदगी का की है, वो ये है जी कि अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो बिल्कुल ऐसा पक्का ईमान। और ईमान। जी हाँ, ईमान की ताकत जो है ना, वो आपको बिल्कुल अपने मकाम से इधर उधर कोई नहीं हटा सकता। दुनिया वाले ये लाख से आपके खिलाफ हो जाएं, अल्लाह के ऊपर जी जो आपका एतमाद होता है ना, तो फिर जब अल्लाह ताला आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके साथ है, बस उसके बाद जो है फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। ये वो सेम सेम यही वो बात है जिससे आई थिंक आपकी मेरी केमिस्ट्री बहुत मैच करती है, कि मैं किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में अल्लाह ताला का भरोसा जो है ना वो रखती हूँ, और फिर मैं स्ट्रांग हो जाती हूँ, और चीजें जो है बहुत सारी ऐसी जो आपको लेट डाउन नहीं होने देती, आपको वीक नहीं होने देती। तो बेशक ये वो बेशक। है जो हमें कमजोर नहीं होने देता। तो यही वो पॉइंट है जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इसीलिए मैं आपको फॉलो भी बहुत करती हूँ, और कभी मैं डिसहार्ट नहीं हुई इस वजह से, एक्सट्रीम सिचुएशन में भी कभी डिसहार्ट नहीं हुई मैडम। तो ये वो सारी चीजें हैं, बड़ा मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपके अंडर रही, आपके साथ रही, और बहुत अच्छा टाइम जो है वो आपके साथ गुजारा। नहीं, होपफुली इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो जरूर हम दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ये सोच चुकी हूँ, बल्कि आपका ये रिटायरमेंट वाली जो पोस्ट है ये तो बाद में आई है, मैं उससे पहले एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही हूँ, और उसमें की जो लोग हैं ना उनमें सबसे पहले मैंने आपका नेम अपने पास रखा, कि जैसे ही मैं काम अपना थोड़ा सा वो कर लूंगी ना, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वाला सेटिंग, तो फिर मैं आपको जो है ना फौरन वहां से फिर आपको कॉल करूंगी, कांटेक्ट करूंगी ना। तो ओके। उसके लिए मैं काम कर रही हूँ मैडम। Thank you, Mehrunisa. Thank you for your words and your time and your discussion. जिशान कुछ पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर समीना साहिबा से। जी जिशान। मनीषा, हेलो सॉरी मैं सर। इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे एक चीज याद आ रही थी, मैडम समीना को हैप्पी बर्थडे भी सब कहना मत भूलिएगा। तो बिलेटेड हैप्पी वही बर्थडे, पूछ 2 दिन हो गए। अच्छा मैं 2 दिन हो गए सबसे हैं। पहले मैंने विश कर दिया था। जी जी। चले मैम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हम अभी आपको टीम की तरफ से भी विशेष भेजते हैं। अच्छा हम वी मिस्ड इट, तो थैंक यू मैम, 2 आपने दिन हो गए रिमाइंड हैप्पी किया। बर्थडे को। इट वाज ऑन 22nd, आज 24 तारीख। अच्छा साहब आप, जीशान, कुछ जिशान आप कुछ पूछना चाह रहे थे या गलती से हो गया प्लीज? हैप्पी अस्सलाम बर्थडे। वालेकुम थैंक यू, वालेकुम सलाम। मैडम, निशान बात कर रहा हूँ। एआरसी से मैंने एमफिल किया है ना, तो मैं आपसे, ज़ाहिर हम तो काफ़ी इंस्पायर थे, हमने काफ़ी आपके क्लासेस भी ली। तो हाँ मैंने ये पूछना चाहता था कि जो हम अगर से आगे पीएचडी वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उसमें स्कॉलरशिप जो है फॉरेन कंट्रीज से, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी है वो मत हमारे मत चिल्लो, मत मतलब जो चिल्लो। research का
उसके लिए हम कैसे मतलब उनको वो करें कि हमें स्कॉलरशिप मिले और हमारे आइडिया जो हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो किस तरह उनसे कांटेक्ट करें या क्या, उसके लिए बताएं जरा थोड़ा मुझे ना। निशान, ये इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि आजकल पहले से ज्यादा स्कॉलरशिप्स जो हैं वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। थोड़ा इसको आप सर्च करें। एक तो ये कि मुझे ये अंदाजा नहीं है कि आपको किस लेवल पे जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन आप देखिए, अगर आप पहले तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। अमेरिका में आपको पता है कि बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन अगर स्कॉलरशिप की बात है ना, जर्मनी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं। और डैट की DAAD जो है, वो एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टूडेंट्स को बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स देती हैं। तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और आसानी से मिल जाएंगी। ये मत सोचिए कि कोई आपको आके बताएगा, आपको खुद जो है थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। और आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स देखें, उससे आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा आपको। वैसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपका किस एरिया में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। पहले आपको अपने लिए जो है ना कुछ जवाबात देने होंगे, फिर उसके बाद आपको सर्च करना होगा। ये मत समझिए कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सिर्फ ये है कि हम ये समझते हैं कि बस हमें खुद से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एफर्ट करने से जरूर मिल जाती है, क्योंकि मेरा यही जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा है। जो मैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में गई हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में गई हूँ, तो वो मेरी अपनी चंद एफर्ट्स की वजह से मुझे स्कॉलरशिप्स भी मिली हैं। बगैर एफर्ट के तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे ये सारी एक्सपीरियंसेस होते। तो मेरा मशवरा आपको यही है, पहले ये डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स की तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपके इंटरेस्ट की क्या फील्ड है। जर्मन स्कॉलरशिप्स का तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, उसका जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में उसका बड़ा अच्छा एक एडवर्टिजमेंट देखा, और उसमें 1000 स्कॉलरशिप्स फॉर एमफिल एंड PhD फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ये जर्मन डैग जो हैं, DAAD, तो ये आप उनको जाके उनके वेबसाइट पे अगर जाके देखें तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये जी, थैंक यू सो मच निशान। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आई ऑलवेज लर्न, मैंने अपनी लाइफ से एक चीज सीखी है मैम, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। एब्सोल्युटली, जब भी आपने तो उसके एब्सोल्युटली, लिए जो है ना आपको आपने बहुत दरिया को कूजे में बंद कर दिया, नो शॉर्टकट फॉर। जी, हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, एंड वी हैव टू कीप गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन। और उसमें मैंने ये देखे कि जैसे आप अभी बता रही हैं कि थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा उस मूवमेंट को कंट्रोल कर जाए अपने विल पावर से या वट एवर, कोई आपको अच्छा मेंटोर मिल जाए, तो आप उस फिर उसके बाद फिर लिमिट इज स्काई। तो फिर हाँ, आप हाँ, बस अल्लाह बिल्कुल, अल्लाह ताला आपका कर लेते हैं, अल्लाह ताला। एंड हाँ, थैंक यू सो मच। आप जैसे लोगों को ही देख के हम लोगों में थोड़ी सी इंकरेजमेंट आती है। वन थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर आल्सो, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात आजकल बहुत हो रही है, बट मैम आई रियलाइज कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट वीमेंस को एम्पावर नहीं कर रही, जो मैंने एनालिसिस कर रही हूँ राइट नाउ। वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, एंड आई वांट कि बाकी लोग जो है वीमेंस बैठी हुई हैं तो वो क्या कहती हैं, क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, फिर एनालिसिस भी कर रही हूँ, इन द सेंस कि जो हमारी वीमेन एम्पावरमेंट है, सब कहते हैं फाइनेंशियली, इफ यू आर फाइनेंशियली एम्पावर्ड यू आर एम्पावर्ड, लेकिन हमारे घरों में और हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है कि इवन दो वीमेन्स आर फाइनेंशियली एम्पावर्ड, दे आर नॉट एम्पावर्ड, क्योंकि रिस्पेक्ट फिर भी नहीं मिल रही। आई मीन जिस सेंस में रिस्पेक्ट हम लोग वीमेंस चाह रही होती है, आप देखिए प्रोफेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, इवन वहां पे वीमेंस को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाता है। इसी तरह हम घरों में अगर चले जाएं, वी आर देयर आल्सो इन सेकंड प्रायोरिटी। लाइक इफ आई एम टेकिंग पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, इट डज नॉट मीन आई एम पावर्ड। इफ आई एम गेटिंग द रिस्पेक्ट इन ऑल माई मैटर्स, देन आई एम एम्पावर्ड। तो आप इस ख्याल में क्या कहती है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी हम एम्पावर्ड नहीं हो रहे? तो क्या आप क्या अपने एक्सपीरियंस से क्या बताएंगे कि क्या रीजंस है? इज इट कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर है, या हमारी जो जी, आई वुड लाइक टू लिसन यू, मैं आपको सुनना चाहूंगी, आप क्या उस पे हमें सजेस्ट करेंगी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? नहीं, डॉक्टर मदिहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
देखिए, ये हमारा सिर्फ ये पाकिस्तान का लोकल फिनोमेना नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। यानी अगर आप जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है अमेरिका में, मेरे 3-4 विजिट्स हुए हैं। यानी दुनिया का सबसे एडवांस्ड कंट्री है, और ख़वातीन के हुकूक के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ख़वातीन के हुकूक हैं। अच्छा, इंग्लैंड में मैं 7 साल रही हूँ, वहाँ पे भी ज़ाहिर है वहाँ के कल्चर और वहाँ पे जो जेंडर इश्यूज हैं उससे जो है मुझे जो है वो काफ़ी हद तक समझने का मौका मिला। मेरे जो सुपरवाइज़र थे यॉर्क यूनिवर्सिटी में, वो उनसे मेरा बड़ा अच्छा डिस्कशन होता था। जितने सोसाइटल प्रॉब्लम्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो काम मैं कर रही थी अपने थीसिस का, उसके अलावा भी उनके साथ काफ़ी डिस्कशन होता था। तो वो एक थिंकर थे, एक फिलोसोफर भी थे, बल्कि हैं माशाल्लाह, डेविड रफायली उनका नाम है। तो उन डिस्कशंस में मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ, यानी हमारी एक प्रिमिटिव सोसाइटी है पाकिस्तान की, या फिर शायद इंडिया की भी हो, वहाँ पे ख़वातीन को एक एक डिस्क्रिमिनेशन है, और बड़ा ऑब्वियस भी है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मुझे यहाँ आपकी सोसाइटी में नहीं नज़र आता, यानी इंग्लैंड में। तो उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर कहने लगे कि आपने हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को जो है बहुत करीब से नहीं देखा, या आपको टाइम नहीं मिला कि गौर करें। और उनकी बात बहुत सही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, इस इंस्टीट्यूट में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, इसमें आप गौर करें, यहाँ पे जितने लोअर स्टाफ है ये ख़वातीन हैं, और जो प्रोफेसर लेवल और जो टीचिंग स्टाफ है यहाँ पे, जो प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, ये सारे मेल हैं। और अगर 10-12 मेल प्रोफेसर्स थे वहाँ पे, तो एक लेडी प्रोफेसर थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन तो है, बट इट इज बीइंग डन इन सच अ सटल वे। उन्होंने कहा ये बहुत सटल तरीके से होता है, तो ये तो सिर्फ हम पहचान सकते हैं, लेकिन आप जो है वो चूंकि, हाँ। तो जब मुझे ये कहा तो फिर मैंने गौर किया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, कि आपने जो पढ़ी लिखी वहाँ की खवातीन है उनको हायर नहीं किया है प्रोफेसर लेवल पे। अच्छा, डायरेक्टर वहाँ पे कोई खातून नहीं रही, यहाँ तो फिर भी मैं समझती हूँ हमारे यहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी खवातीन जो हैं वो, उनको अहम रोल दिया गया है। लेकिन फिर अगर आप अमेरिका की बात करें, वहाँ पे मैं भी हाल ही में जब होके आई थी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी मुझे ये फील हुआ। और मेरी वो खातून जो डायरेक्टर थी, उनको जो चैलेंजेस दरपेश थे, जो उन्होंने मेरे से काफ़ी हद तक डिस्कस किए, उससे भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ख़वातीन की ज़िंदगी जो है ना, कोई इतनी स्मूथ नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है। तो जब भी तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की बातें की जाती है ना, हर लेवल पे की जाती हैं, यूनाइटेड नेशंस में की जाती हैं, वर्ल्ड बैंक में की जाती हैं, तो जब उस लेवल पे एम्पावरमेंट की आप बात करें, तो इसका मतलब है इशू तो है वहाँ पे भी। तो लेकिन ये कि हमारे मजहब ने जितने खवातीन को हुकूक दिए हैं ना, ये ऐसे हुकूक दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन हम अपने मजहब पे अगर सही अमल करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, तो खवातीन को कोई शिकायत ना हो। ये मसला है। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I would like to play a small tribute. तो मैं वीडियो प्ले करती हूँ, और प्लीज शेयर कीजिएगा। Everyone is watching it, और मैं ही देख रही हूँ। विजिबल है? Is it visible? नो। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें ना पहले, फिर उसके बाद प्ले करें। और मैडम साहबा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वीडियो जिससे बनाई है, ये मरीम अली इमरान है। शी इज जस्ट अ ओ लेवल स्टूडेंट। अच्छा, ओके। ठीक है, और शी इज आल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम टीम। ये सारी की सारी जो वीडियो और सब चीज़ें हैं, ये सारा कुछ इसी ने बनाया है। अभी वो आपसे क्वेश्चन भी पूछना चाह रही है, तो इस वीडियो के बाद वो आप पूछने देंगे प्लीज।
Okay. Thank you इरफान और थैंक यू मरियम थैंक मरियम यू। नाम जी जी मरियम बेटा, आप पूछें क्या पूछना मरियम चाह रही हैं मैडम साहबा से, प्लीज। और मरियम जो है, शी इज डॉटर ऑफ डॉक्टर सैमा खान, वो हमारी टीम मेंबर है। जी जी डॉक्टर सैमा खान डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। और जी वो तो हमारे साथ काम कर ही रही हैं, तो वो बहुत वाइब्रेंट थी कि मेरी बेटी जो है वो भी आप लोगों की टीम में हिस्सा चाहती है और वो काम करना चाहिए। जी बेटा प्लीज पूछें आप डॉक्टर साहबा से। जी Assalamualaikum. I am Marian Ali Imran, and as sir mentioned, I am an O-level student. I'm just doing like in sciences. I actually have a question since like you, I just researched a lot about you. Like, you know, you have an extensive background in climatic, economics and stuff. अभी जो हमारा project 2025 आ रहा है, which Donald Trump he has launched, he like a lot of substances in that are like quite greenwashing के मतलब के काफी like उनकी policies they are in a sense के they are more of like a facade in a sense ke, you know, they just show that we are spending money on the climatic conditions. However, it's not. And in a sense, also a lot of his policies, they are affecting women and their education in terms of pay gaps and banning books which have a significant history um, in like racism and a lot of major themes. So I would like to ask your views on it. And of course, Pakistan ke upar bhi काफी ज़्यादा effect पड़ेगा इसका because United States is one of the largest countries. So I would just like to know your view in that sense in terms of economics, women empowerment, and education. Thank you so much. देखिए मरियम, I think you are absolutely right in saying that the new government in USA is going to adopt the new policies. New policies in a sense that the issues that you have mentioned regarding the climate change and all that, the Republicans have never been interested in so resolving this issue at the policy level just because of some interested groups, or you may call it all those who are have got vested interest in not doing anything for climate change with letter and spirit. So you are right about it. But one thing which is very important, ये बिल्कुल आप अपने जहन में ये बात रखें कि सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं उनके कुछ करने या ना करने से कुछ नहीं होता। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे उनकी जो सिविल सोसाइटी है वो बड़ी वेल अवेयर्ड है, और सिविल सोसाइटी को क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल दीज इश्यूज विच आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, उसकी बड़ी अवेयरनेस है। और वहाँ पे बड़े प्रेशर ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा हैं और हर किस्म के हैं, यानी प्रेशर ग्रुप्स not at the university level but also at the school levels, at the primary level, at the secondary level. और फिर women organizations, they also take all these issues in their hands. तो ये बड़े vocal groups हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट पॉलिसी से कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट होगा। वो अपनी सोसाइटी में अपने ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, और ये जो सिविल सोसाइटी की जो बात होती है उसको वो सुनते हैं, और उनको सुनना पड़ता है क्योंकि वो तो जाहिर है कि डेमोक्रेसी है, वो वोट लेते हैं उनसे। तो बज़ाहिर तो उनकी बातें ऐसी होती हैं जिससे ऐसा लगता है कि इनकी पॉलिसीज जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर सर्टेन इश्यूज लाइक द क्लाइमेट चेंज इशू एंड ऑल दैट, बट दे आर वेरी वेल अवेयर्ड पीपल, द मासेस आर वेरी वेल अवेयर्ड। सो बड़ा मुश्किल होता है कि जो है गवर्नमेंट अपनी कोई गलत पॉलिसी चला सके। तो रेस्ट अश्योर्ड दैट थिंग्स वुड बी मच बेटर इन द न्यू गवर्नमेंट। तो जाहिर है उनको तो सुनना पड़ता है ना। बट बिजनेसेस, देखिए जो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज अ बिग टाइकून बिजनेसमैन, and he is definitely going to I mean take care of the businesses of his contemporaries and all that. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल जो ऐसे सोसाइटल इश्यूज हैं जिसका उनकी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट है, उनकी सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, उसको वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के खातिर जो है वो छोड़ नहीं सकते और उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। Thank you so much. Thank you.
Okay. Thank you so much, Dr. Samina Khalil, ma'am. Thank you so much for your time, for your valuable insights and suggestions and everything. आपने हमें बहुत अच्छी जो suggestions दी, स्पेसिफिकली जो आपने, वो बात तो मेरे माइंड में बैठ गई है कि आप किसी भी काम अगर अचीव करना है तो यू हैव टू बी परसिस्टेंट। बस ये चीज जो है सभी के, जब तक हम किसी भी चीज को कंटिन्यू नहीं करते, वो चीज कभी भी पाया तक मील तक नहीं पहुंचती। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माई थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और स्पेशली डॉक्टर समीना हलील साहबा का शुक्रिया अदा करूंगी, फिर सीईओ इरफान हुसैन जो पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम को हर पॉइंट ऑफ व्यू से रन कर रहे हैं, एंड ही इज आई थिंक वैल्यूबल, जो है ना, जो आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम इन द सेंस कि वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इट वाज इम्पॉसिबल एट अ ह्यूज लेवल, पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स को साथ लेके इरफान चल रहे हैं। तो मैं इरफान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करें, और मैम समीना खलील साहिबा को अपने बिहाफ पे थैंक्स भी बोल दें, एंड थैंक यू सो मच। एंड जी, ओवर टू यू इरफान। थैंक यू डॉक्टर मदीहा। और इरफान, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं इरफान के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। इरफान ने जब ये अपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों को एक दूसरे के साथ जो इश्यूज वो एक्सचेंज करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सचेंज करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म की बड़ी अहमियत है, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हमारे पास ऐसे मौके कम है, ऐसे प्लेटफॉर्म कम है जहां हम एक दूसरे की बात जो है उसको, और ये बड़े अच्छे तरीके से सिविलाइज्ड मैनर में हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इसका जो सेहरा है वो इरफान हुसैन साहब के सर पे बांधा जाना चाहिए। इट्स रियली वेरी अप्रिशिएबल thing that you are doing as a CEO of PEF. So please keep doing the good work, और यकीनन आपके इस प्लेटफॉर्म से मुल्क का भी फायदा होगा, और हाईएस्ट लेवल पे भी जो है आपका ये प्लेटफॉर्म जो है एक रोल जरूर प्ले करेगा। थैंक यू इरफान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। हेलो जी जी मैडम, मैं जी रिशान जीशान बात साहब कर रहा प्लीज। हूँ। मुझे एक इम्पोर्टेंट एक इशू जरा डिस्कस करना था कि जाहिर जी है जैसे आपने ये कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो मदर ऑफ ऑल एजुकेशन होती है। मैंने काफ़ी एजुकेशन डिफरेंट सेक्टर में की, मार्केटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है वो हर चीज़ को कवर करती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने इतनी रिसर्च की, सब लोगों ने की, लेकिन उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे होते, क्योंकि एट द एंड हम सारी चीज़ें कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये करना है। तो मैं शुरू से मैं एसवीपी हूँ एक बैंक में ना, तो हाईएस्ट लेवल में काम कर रहा होता हूँ। तो हमने हमेशा ये देखा है जब काम नहीं हो रहा होता तो हमें ऑल्टरनेट पे जाना पड़ता है, कि मुझे पता है कि ये रास्ता अगर सही नहीं है तो मैं ऑल्टरनेट डेवलप करता हूँ उस चीज़ों में ना। तो जब हम कोई भी सजेशन हम देते हैं कि हम गवर्नमेंट ये करेगी वो, तो हम कम्युनिटी की बेस पे क्यों उनको अवेयरनेस नहीं दिलवाते लोगों को, कि लोग आगे आए और जो पर्टिकुलर अगर एजुकेशन का मैटर है हम उसके अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं कि वो अपने मसाइल हल करें, और वहाँ पे जो इन्वेस्टर या जो ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ को वेलफेयर करना चाहते हैं वो शामिल हों। तो ऐसे हेल्थ का कोई इश्यू हो तो वो चीज़ प्रमोट की जाए, ताकि हमारे मैटर हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी बेस पे हल हो जाए। तो इस पे हम कैसे कुछ नेटवर्क कर सकते हैं या कैसे काम कर सकते हैं? तो जीशान, आपका ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। देखिए, कम्युनिटी वर्क जो है, जितनी एडवांस कंट्रीज है ना, चाहे वो यूएसए हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, आप देखिए वहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे जो काम होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। उसी की वजह से उनकी गवर्नमेंट जो है वो इस कम्युनिटी लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। इज्जत से मतलब ये कि उनकी बात सुनते हैं और अपनी पॉलिसीज को उसी कम्युनिटी में जो काम हो रहा होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे उनको बेनिफिट होता है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ तो हमारे मुल्क में भी हो सकती है। बहुत सी एनजीओज ये काम कर रही हैं, लेकिन इसलिए कि वो उनके काम की कोई पब्लिसाइज उसको नहीं किया जाता, या वो सामने नहीं आती, या मीडिया में जो है वो पता नहीं चलता कि ये एनजीओ जो है वो किस तरह काम कर रही है। कम्युनिटी लेवल पे काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन देखिए, मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट माई सेल्फ, एकेडमिक्स में मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी है। मेरी नज़र में हम अगर अपने मुल्क का जो दो चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस हो, हमारी हुकूमत का फोकस हो, और साथ साथ एनजीओज जो काफ़ी काम कर रही हैं उनका भी ये फोकस हो
कि ये एजुकेशन और हेल्थ, ये दो ऐसे की एरियाज हैं जिसमें एक तो हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो सालाना बजट होता है उसमें इसकी ये अमाउंट बढ़ाई जाए, इसकी एलोकेशन बजट में एजुकेशन के लिए बढ़ाई जाए। ये प्रोविंशियल लेवल का सब्जेक्ट है एजुकेशन, ये तो सब जानते हैं, लेकिन फेडरल लेवल से जो है अगर रिसोर्सेज फराहम की जाए एजुकेशन के लिए ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है प्रोविंसेस को जो है वो फ़ायदा होगा। और हेल्थ भी, हेल्थ केयर पे आप देखिए कितना कम पैसा जो है वो हमारे फेडरल बजट में एलोकेट होता है, और फिर वो ट्रांसलेट होता है यहाँ पे आके प्रोविंसेस में, तो वो और भी कम हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने सबसे पहले तो एजुकेशन पे हर लेवल पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तक हम एक टारगेट लेवल की एजुकेशन फॉर ऑल अचीव ना कर लें, मेरा तो ये ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में जो है ना एजुकेशन की इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है हर लेवल पे। ये सिर्फ बच्चों के एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, एडल्ट एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। जब तक एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, सेहतमंद लोग नहीं होंगे, वो कम्युनिटी का जो आप कम्युनिटी की आपस में जो कोलैबोरेशन के साथ अपने फायदे के लिए, मुल्क के फायदे के लिए काम करते हैं, वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि एजुकेटेड लोग जाहिर है ज़्यादा वेल अवेयर्ड होते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन ये तो किसी को किसी ने मना नहीं किया ना कि आप कम्युनिटी लेवल पे काम ना करें, और लिंक्स भी आप बना सकते हैं। तो ये तो काम करने वाली बात है, आपकी नीयत ही बात है, आपकी नीयत सही है, आप काम करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज डू इट। मैनी एनजीओज आर डूइंग गुड वर्क। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर करें। और बहुत से नौजवान जो है ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी इरफान। जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली कंफ्यूज एंड नर्वस कि जब कंफ्यूज नहीं हो। आपका टीचर आपके सामने बैठा हो और डॉक्टर सोफिया अनवर साहबा, तो आपका स्टूडेंट जो है वो एक कंफ्यूज भी होता है, लेकिन साथ साथ मोटिवेट भी होता है कि हमारी जो टीचर, जो उस्ताद हैं, वो सामने बैठी हुई हैं। मैडम ये तो साहबा, बहुत डॉक्टर समीना टीचर हैं आप, आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शी इज सच अ स्वीट पर्सन। मेरे ख्याल में वो टीचर भी बहुत अच्छी, बहुत ही। एग्जैक्टली बट देखिए, हम वो टिपिकल एक स्टूडेंट्स हैं जो जब टीचर गुजरता है तो एक दिल नहीं, में एक वो बात एक है, है, आप तो इज्जत करते वो हैं। एक वो रिस्पेक्ट का जो लेवल है एग्जैक्टली। कि ऊंचा ना बोला जाए, और एक वो रिस्पेक्ट का लेवल। तो आई अंडरस्टैंड बिल्कुल। तो मैं जितना मर्जी मैं कामयाब हो जाऊं, पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम को कितना भी आगे लेके जाऊं, बिलीव करें कि अगर मेरी पर्सनैलिटी के अंदर कोई ग्रूमिंग आई है, तो इसमें पूरे का पूरा जो क्रेडिट है वो मेरी टीचर का है। आपने इतनी बड़ी बात की डॉक्टर समीना खलील साहबा के, मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया में के ड्रामे अक्सर हम लोग देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो एक चीज़ जो मुझे इंडिया के ड्रामों और मूवीज़ में जो अच्छी लगती है कि इंडिया ने अपना कभी तक नहीं छोड़ा। हम लोग अपने थोड़ा सा यूरोपियन साइड पे चले गए, कभी चाइना को फॉलो कर लिया, कभी किसी और कंट्रीज को फॉलो करके उसके कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो इंडिया की मूवीज में हम लोग मैं देखता हूँ कि अभी तक स्टिल ये देखें कि अगर उनके 70s और 80s के जो हीरो थे, लाइक अमिताभ बच्चन है, लाइक और भी जो डिफरेंट जो लेजेंड्स जो अभी भी काम करें, बिलीव करें कि आपको अभी भी उनके ड्रामों में वो नजर आएंगे, बार बार नजर आएंगे। कि कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने जो लेजेंड्स हैं उनको पीछे नहीं छोड़ा, उनको किसी ना किसी जगह पे रखा है अपने साथ, क्योंकि दे आर दे लिविंग लेजेंड्स, उनके बगैर यूथ आगे नहीं जा सकती। तो ये जो ट्रिब्यूट है ये तो कुछ भी नहीं है, ये एक हम रस्म एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि एक बंदा जो उसने डेकेड ऑफ सर्विसेज लगा दी, सुबह दोपहर शाम अपनी एक उम्र लगा दी उस सर्विस में, यूनिवर्सिटी कॉलेज एक इदारे को बनाने में, और जब वो जा रहा है तो उसको एक ट्रिब्यूट तो देना चाहिए, ट्रिब्यूट तो देना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर समीना ही नहीं, हमारे इससे पहले भी कितने लोग
रिटायर्ड हुए, किसी ने नहीं पूछा। लोकल लेवल पे तो होगा, लेकिन अपर लेवल पे कि पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स फील्ड, वी आर कनेक्टेड विद 120 इंस्टीट्यूट्स। तो हमारा जो मैसेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक 120 इंस्टीट्यूट तक ये फ्लोरिश करेगा। इससे पहले अगर हम बात करें डॉक्टर इमरान शरीफ चौधरी साहब, जो जिनकी कुछ अर्सा पहले 2 साल पहले डेथ हुई, वो डीन रहे, उन्होंने बड़ी सर्विस गुजारी। इससे पहले भी और हमारे कुछ जो डॉक्टर परवेज ताहिर साहब, उनकी डेथ हुई। और इसके साथ साथ काफी लोग जिन्होंने पूरी सर्विसेज गुजारी और उनको रिटायरमेंट के बाद पूछा ही नहीं गया, नॉट ओनली इन एकेडेमिया, नॉट ओनली एट अ प्रिंट मीडिया, नॉट ओनली, देखिए डिफरेंट एसोसिएशन बनी होती हैं कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, HEC की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू नो वेरी वेल। तो कहीं पे मुझे ये नजर नहीं आया, हम हर जो था वो अपनी अपनी दौड़ में था। तो फिर जब मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, डॉक्टर मदिया रियाज साहबा के साथ डिस्कस किया, क्यों ना हम लोग एक रस्म स्टार्ट करें। और आज डॉक्टर समीना खलील साहबा ने एक जो सर्व किया है, उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए। नेक्स्ट मंथ हम प्लान कर रहे थे कि डॉक्टर नदीम साहब एक अच्छा टेनोर गुजार के गए हैं पाइड में, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप भी हमें टाइम दें, हम आपसे भी सीखना चाहते हैं। आपने भी माशाल्लाह प्लानिंग कमीशन में गुजारा टाइम, फिर पाइड में। इसके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं जो बिल्कुल एक गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं, और दे आर दी रियल डायमंड्स, डायमंड्स ऑफ अवर पाकिस्तान। ताकि हमारे यूथ को तो पता चले ना। अब जो बच्चा, अब हमारी टीम में देखें BS के बच्चे भी हैं, ADP के बच्चे भी हैं, उनको भी तो पता चले ना कि डॉक्टर समीना खलील एक एक बाप था, एक चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, वो अब सर्विस से रिटायर्ड हो गया। उनको पता तो चले। डॉक्टर सोफिया अनवर भी कोई एक चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, डॉक्टर मदिया रियाज है, इसी तरह डॉक्टर सफिया मेनाज है। पता चले, हमारे बच्चों को पता चले, वो उनको भी पता चले कि दीज आर द रियल इकोनॉमिस्ट। वो इकोनॉमिस्ट भी थे और दे आर द गुड ह्यूमन बीइंग भी। उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर अपना इनपुट अदा किया है। तो डेट्स द मेन थिंग जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी की पूरी जनता को और पूरी की पूरी ऑडियंस तक अपना मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रहे थे। थर्डली जो सेकंडली जो एक मेन थीम था पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम का, कि हम लोग एकेडेमिया वाले अपनी रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट वाले अपना काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, एकेडेमिया वाले कहते हैं हम अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम विल बी अ ब्रिज बिटवीन इंस्टीट्यूट्स एंड द एकेडेमिया। हम इसको ब्रिज करना चाह रहे हैं। आप हमारे अगले सेशन देखेंगी तो हम पब्लिक, प्राइवेट, एकेडेमिया सबको मिक्स कर रहे हैं। आए अपना आइडिया दें, आए हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, आए हमें बताएं। तो ये चीज़ मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि इसको मिलाना चाहिए। तो उसमें आप जैसे सीनियर लोग, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारा पार्ट बने पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम का, ताकि हम आपकी जो जो आपका नॉलेज है उससे सीख सकें और एक ब्रिज का रोल अदा कर सकें कि कौन ठीक है और कौन ट्रैक पे जा रहा है। तो ये पूरे का पूरा जो एक सेशन करवाना था, उसकी सर्विसेज यही थी कि एक तो हम ट्रिब्यूट दे सके आपको, और एक रस्म करते जाएं कि ये अब ख़त्म नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ये जो हमने एक पौधा तैयार कर दी है, ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म नहीं होगा। और ये मैं टीम बनाने का मकसद भी ये था कि मैं इंशाल्लाह ताला इसको चलाऊंगा टीम की शक्ल में। मैं रहूं या ना रहूं, टीम बनेगी, टीम चलाएगी, पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं अपनी पूरी टीम, जिन्होंने ये सेशन किया, डॉक्टर समीना खलील साहबा, आपने इतना टाइम दिया, इतनी खुशी हुई कि आपका पूरे का पूरा जो एक टेनोर था, हमने उसको 1 घंटे में कवर करने की कोशिश की और आपकी मेमोरीज को एक रिकॉल करने की कोशिश की, ताकि आप भी। इरफान सर, जी इरफान सर, प्लीज। बस मैं ये थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो मैडम ने भी कहा था मैं एक किताब लिख रही हूँ, तो वो मैं चाहता हूँ वो कब तक आ जाएगी, क्योंकि हमने तो इनके लेक्चर माशाल्लाह सुने, तो बड़े फेयर लेक्चर होते थे कि जो लोग इस पे स्पीच नहीं करते थे, लेकिन ये बड़े बोल्ड तरीके से उस बातों को कह देती। तो वो मैं किताब जब आप मतलब करें, ताकि सबके लिए वो एक फिर लर्निंग एक्सपीरियंस हो,
और मैडम वो उस पर आप बताएं कब तक आप वो कर लेंगे थोड़ा। ये किताब इंशाल्लाह जीशान, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं ये जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में आरिगी सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ है, उनके साथ ये मैं वहाँ पे 3-4 प्रोफेसर्स हैं जो कि मैंने जब विजिट किया था 2 महीने पहले वहाँ पे, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था। वो मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं, जैसे वहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो ये डिफरेंट फील्ड्स का एक इंटरफेस है। तो उसमें इकोनॉमिस्ट भी काम करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो बातचीत तो खैर हो चुकी है, मैंने उस पर काम भी अच्छा खासा शुरू कर दिया, बट आई थिंक इट विल टेक मोर देन अ ईयर्स टाइम। तो जब ये कंप्लीट होगी तो मैं ज़रूर उसको जो है वो उसको पब्लिसाइज करूँगी और उसको लॉन्च करूँगी। जाहिर है ये मैं किताब जो है वो सबके लिए ही लिख रही हूँ, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी पता चलेगा। तो जीशान, अब सॉरी इरफान, अब हम पिक्चर ले लें मेमोरेबल जी जो। डॉक्टर समीना खलील साहब अगर कुछ कहना चाहती हैं लास्ट में तो वरना मैं तो आपका हम तो शुक्रिया अदा करना इतना चाहती हूँ। इतना इतना दिल कर रहा था कि आपकी बातें और सुने और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं कि आपने ये सफर कैसे गुजारा। लेकिन देखें हम एक मेमोराइज करना चाह रहे हैं पूरे के पूरे सेशन को, 1 घंटे को, ताकि वो यादगार रहे। जब हम इसको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पे रखेंगे तो आप भी इसको बार बार रिकॉल करती रहेंगी कि एक सेशन हुआ था और उसके अंदर पूरी की पूरी जो मेरी जर्नी थी वो उसके अंदर एक जगह पे पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ ये तो है, लेकिन आपने जैसे कहा 1 घंटे में जो है 35 साल को समोना वो इतना आसान काम नहीं है क्योंकि मेमोरीज तो बहुत ज्यादा हैं, टू मैनी। लेकिन ये कि इंशाल्लाह फिर मौका मिला, हो सकता है कि एक किताब ही लिखूं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उस पर तो बल्कि किताब लिखनी चाहिए। मुझे मेरे दोस्तों ने हमेशा ये मशवरा दिया कि आप एक ट्रेवल लॉग लिखें, आप ये लिखें, सफ़रनामा लिखें, क्योंकि आपने जितने मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र किया है तो उस पर तो बाकायदा एक सफ़रनामे होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है मैं एक एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन एकेडमिशियन मैं हो सकता है सफ़रनामे भी लिखूं। तो अब मैं समझती हूँ, जैसे अभी डॉक्टर मदीहा ने पूछा, नहीं डॉक्टर सोफिया ने पूछा था कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो कैसा लग रहा है। मुझे बिल्कुल आराम नहीं फील हो रहा, मुझे लग रहा है मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत सारा काम करना है। उसमें ये काम भी है कि मैं किताबें लिखूं, सिर्फ एक किताब नहीं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आपकी ये काविश, ये कोशिश बहुत काबिले तारीफ है, आप ये जरूर कंटिन्यू करें। थैंक यू। और आपने इंशाल्लाह। हाँ, तो आपने जो है वो 2-3 बड़े अच्छे हजरात का जो है वो प्रोफेसर इमरान का जिक्र किया। मैंने उनका नाम सुना था, मेरी तो उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन डॉक्टर परवेज ताहिर का आपने कहा कि वो भी दुनिया से चले गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो है एज डायरेक्टर AERC मैंने करवाई थी। आखिरी जो 2019 में मैंने की थी वो इस्लामाबाद में थी। हर कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर परवेज ताहिर को हमने इनवाइट किया था एज ए स्पेशल स्पीकर, हम कभी भी उनको भूले नहीं थे। तो जो है नादिया, मेरा ख्याल है डॉक्टर नादिया इस चीज़ से एग्री करेंगी क्योंकि वो भी साथ आती थी। तो मैं बिल्कुल आपके ख्यालात से मुत्तफिक हूँ, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट किया है, इस सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू जज़ाकल्लाह। थैंक यू डॉक्टर समीना खलील साहबा, थैंक यू डॉक्टर मदिया रियाज साहबा, और थैंक यू रिस्पेक्टेड टीचर्स डॉक्टर सोफिया अनवर साहबा। आपने इतना टाइम दिया, डॉक्टर सफ़िया मिनाज और तमाम जो मेरी पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम की टीम है, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इस प्रोग्राम को इतना अच्छा जो है वो बेहतर बना दिया। आप So आपका भी at the बहुत end, I would शुक्रिया, like हम to सबको जमा किया और इतना अच्छा मौका दिया डॉक्टर समीना खलील को, तो जो है उनकी खिदमात को सराहने का और एक जगह जमा होकर आपस में बात करने का। बहुत शुक्रिया। so Irfan, I would like to request everyone जो अपना शेयर करना चाहें, अपना प्लीज कैम ऑन करें एंड एक मेमोरेबल पिक्चर हो जाए। क्या ख्याल है जी इरफान?
जी, एक ग्रुप फोटो हम एक करते हैं हमेशा कि एक यादगार रह जाए, जो फिजिबल है। यू नो कि सर्दियां हैं तो हर बंदा इनफॉर्मल बैठा होगा, लेकिन जो जो फिजिबल है वो आ सकता है। मैं तो हूँ ऑलरेडी फोकस में। मैं भी आ गई, ठीक है ना। जी बिल्कुल। जीशान को भी आना चाहिए, उनसे भी गुफ्तगू हुई है। और बाकी ये कौन है, मेहरून निसा? जी, और कोई आना चाहिए? मैंने कुछ पिक्चर्स ले ली हैं। थैंक यू। जी थैंक यू, जजाकल्ला। थैंक यू जजाकल्ला। एवरीवन। आप सब अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे, आप सब लोगों को। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोफिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे। और आपका आइडिया भी बहुत अच्छा लगा कि हमें एजुकेशन के लिए प्राइमरी लेवल पे कुछ कोलैबोरेट करते हुए करना चाहिए। अब हमारा काम है कि हम हुकूमत पे रिलाई ना करें, बल्कि आपस में, हम बड़े हो गए हैं थोड़े, तो हमें अब कुछ कर देना चाहिए नहीं, बच्चों के इंशाल्लाह लिए। मैम, वी विल कोलैबोरेट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक ओके। यू। ओके 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 अल्लाह डॉक्टर हाफिज। समीना, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।